Good morning, my dear students. I hope you all are fine and enjoying this class on this digital platform. So once again I welcome you in today's class. So I will be teaching you English, grammar, determiners. I have started the lesson before, and that is the lesson I have been continuing, and today also I will be continuing that lesson. Part 1 I have taught you. Now today I will be teaching you part 2 of determiners. Okay. So rules of determiners already I have taught you. Determiners are always used before a noun, not after it. You know very well. I have already told you. Determiners are always used before a noun, but not after a noun. They are used before any modifier used before the noun. Determiners are used before a noun phrase. Determiners are used before a singular noun. Generally, we use determiners with plural noun specifically when we talk about specification. So this also I have taught you that basically we use determiner before a singular noun, but in a specific case, in particular case, we can use determiners with plural nouns. With plural nouns we generally do not use determiners, but according to rule, generally we do not use determiners with plural form of the nouns. Okay, but in a specific case we can use determiners in plural nouns also, along with plural nouns also. Okay, now move on to the next slide. Now we see, many a times people are confused, readers are confused, students are confused that determiners and pronouns are actually the same. No, determiners and pronouns are never the same. They look alike, okay? They look alike, but they are not the same. Okay, this thing you must keep in mind. Determiners are different and pronouns are different. How? Determiners are used before the noun. You know very well. Determiners are used before the noun. Determiners का उपयोग कब होता है? Noun से पहले. But pronouns are used at the place of a noun. Pronouns are used at the place of a noun. नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन के जगह पर. ठीक है, यू ऑल नो वेरी वेल. प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. तो इन प्लेस ऑफ ए नाउन वी यूज प्रोनाउन, बट बिफोर अ नाउन वी यूज डिटर्मिनर्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिटर्मिनर एंड अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, यू सी हियर, those glasses are mine. Glasses is basically a noun. Is it clear? Those glasses are mine. Okay? Those glasses are mine. So those comes before this noun. So those is a determiner over here. Okay? Glasses को modify कर रहा है. Glasses से पहले आया है. ये कौन सा word आया है? Those. तो दोज क्या है? डिटर्मिनर है. तो दोज किसको डिटरमाइन कर रहा है? ग्लासेस को. दोज आर माइन. दोज ग्लासेस, वे जो ग्लासेस है मेरे हैं. वो जो है, हाँ, अगर हम बोलते हैं ओ मेरे हैं, मतलब क्या? ये तो नहीं दिया है. ओ मेरे हैं, हो सकता है ग्लासेस हो. ओ मेरे हैं मतलब ग्लासेस ही है वहां पर, लेकिन ग्लासेस बोल के वहां रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, बताया नहीं गया है. तो यहां दोज डिटर्मिनर है, यहां दोज प्रोनाउन हो जाएगा. और कौन से डिटर्मिनर होगा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव. हम लोग टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तो क्लियर होते जाएगा. तो दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ओके, सो दोज आर माइन. दोज यहां पर प्रोनाउन हो गया, लेकिन यहां पर दोज क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया, क्योंकि यहां ग्लासेस से पहले आया. यहां हम लोग ग्लासेस की जगह किसको लिए हैं? प्रोनाउंस के लिए हैं. दोज ग्लासेस की जगह सिर्फ हम लोग प्रोनाउन के लिए हैं. दोज
इसीलिए प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर? माई ड्रेस इज ऑफ रेड कलर, मेरा ड्रेस क्या है? रेड कलर का है। ड्रेस, व्हाट इज ड्रेस? ड्रेस इज noun here. Dress is noun here, and before this noun possessive determiner has come. Possessive means जो हक बताता है, जो मेरा है, उसका है, तुम्हारा है, उन लोगों का है। तो my, our, ये सब क्या है? his, ये सब क्या है? possessive determiner है। So we will read about possessive determiner in the coming classes. So my is a determiner over here. पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब मेरा हक बताता है कि मेरा ड्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरा ड्रेस पर उस पर मेरा ड्रेस पर हक है। हियर देखो, माइन इज ऑफ रेड कलर। माई ड्रेस का जगह ये प्रोनाउन का यूज हुआ है, माइन, तो ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है? क्लियर? अब देखो, मोस्ट डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस आर एग्जैक्टली द सेम वर्ड। ज्यादातर डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स हो सकते हैं, बट दे आर डिफरेंटली यूज्ड, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है? क्लियर? सी हियर, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, दिस, दैट, सम, एनी, आइदर, नीदर, एटसेट्रा। ठीक है? ये दिस, दैट, सम, एनी, इधर, नीदर, एटसेट्रा, ये प्रोनाउन भी होता है, हो सकता है। हाँ, ये डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है? बट डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स आर नॉट द सेम, determiners and pronouns are not the same, and pronouns and adjectives are not the same. Okay, is it clear? They are different. Some determiners and pronouns look similar. कुछ determiners और जो pronouns होते हैं एक जैसे दिखते हैं, but are not exactly the same. लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे उनका मीनिंग चेंज होता है। दे कैन एक्ट एज ए डिटर्मिनेटर, एक्ट एज ए प्रोनाउन। सो मोस्ट ऑफ सम डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दे बिल्कुल एक नहीं है, वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, योर एंड योर्स। Your is a pronoun here, yours is a determiner here. Okay? Her is a pronoun here, hers is a determiner here. Our is a pronoun here, ours is a determiner here. Is it clear? देख पा रहे हो? Your और yours का फर्क, दोनों में फर्क है, एक जैसे दिखते हैं। क्या फर्क है? इसमें एस लग गया है, मतलब एक अल्फाबेट ज्यादा हो गया है डिटर्मिनर में, एक अल्फाबेट ऐड हो गया, एक लेटर ऐड हो गया है। ठीक है? इसी कारण ये डिटर्मिनर हो गया। एक लेटर ऐड होने के बाद ये डिटर्मिनर में बदल गया, प्रोनाउन। देख सकते हो ना, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स। ओके? नाउ कम टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है? आर्टिकल्स ए एंड द। सबसे पहले आर्टिकल्स होते हैं। डिटर्मिनर्स में पहला जो डिटर्मिनर आता है वो होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, आगे की क्लासेस में हम पढ़ाएंगे। ओके? व्हाट आर definite articles, what are indefinite articles? As you all know very well, an is an indefinite article, the is a definite article. Okay? Now then there are possessives. Possessives are there.
like my, our, your, his, her, its, their. These are possessives. What determiners are these? Possessives. This is the second type of determiners. जहां हक दिलाता, हक के बारे में बताता है, माय, आवर क्या है, हमारा अधिकार के बारे में दर्शाता है, ठीक है. देन देयर आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स जब मैं पहले थोड़ा देर पहले बताया था, दिस, दैट, दोज, ये क्या बताता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये बताता है यह, वह, वहां, यहां. दिस ऑल रिफर्स टू डेमोन्स्ट्रेटिव्स. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब डेमोन्स्ट्रेट करता है. Then there are quantifiers. Quantifiers, much, both, some, several, all, etc. Quantifiers relates to quantity. Quantity के बारे में बताता है, मतलब how much of a thing. It may be in number, it may be in measurement. Quantifiers relates to how much of a thing. Clear? Much, both, some, several, all these are quantifiers. So basically this relates to quantity. Okay, how much of a thing. Okay, how many of persons are there. Okay, it relates to how many. Number से भी related होता है quantifiers. Okay, clear? प्रीडिटर्मिनर्स पढ़ाएंगे अभी, लेकिन इससे पहले बता दूं जो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हमने बताया है, इसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन उससे पहले जरूरी है, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स समझने से पहले जरूरी है कि प्रीडिटर्मिनर्स के बारे में आप सभी समझ जाओ. यू मस्ट लर्न अबाउट प्रीडिटर्मिनर्स, व्हाट प्रीडिटर्मिनर्स आर. ओके, प्रीडिटर्मिनर्स आर आल्सो डिटर्मिनर्स. ओके, that's why you need to learn about predeterminers before I move forward towards the explanation of types of determiners. Okay, so pre means before. Pre का मतलब क्या होता है? Before. बोलते हैं ना प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, बोलते हैं ना, सोशल साइंस में पढ़ते हो. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है. तो प्री मीन्स बिफोर. ओके, डिटर्मिनर्स मीन्स दिस इज व्हाट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग. ओके, तो पहले ये प्री डिटर्मिनर का कहां पर यूज होगा इसका भी बताएंगे. डिटर्मिनर्स मीन्स वर्ड दैट डिटरमिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन और ए नाउन फ्रेज. डिटर्मिनर का मतलब क्या है? ऐसा वर्ड है विच डिटरमिन्स समथिंग, विच डिटरमाइंस समथिंग. ओके, जैसे कौन चीज कैसा है, हाँ, कितना है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब को बताता है, ठीक है. और बेसिकली ये नाउन फ्रेज के बारे में बताता है कि डिटर्मिनर्स कहां यूज होता है. नाउन का पहले यूज होता है और नाउन फ्रेज के पहले यूज होता है. वही चीज को यहां दर्शाया जा रहा है, नाउन और नाउन फ्रेज. Predeterminers are the words which occur before a determiner to give more information about a noun in a noun phrase. और जहां तक प्रीडिटर्मिनर का सवाल है, जो अभी लेसन हम लोग कर रहे हैं, प्रीडिटर्मिनर डिटर्मिनर का ही ये अंश है. तो प्रीडिटर्मिनर जो है बेसिकली आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर डिटर्मिनर. आपने डिटर्मिनर के बारे में देखा, दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए नाउन फ्रेज. डिटर्मिनर अभी प्री डिटर्मिनर कहां यूज होता है? नाउन या नाउन फ्रेज के पहले डिटर्मिनर यूज हो गया और उससे पहले फिर प्री डिटर्मिनर यूज होगा, ठीक है. आई विल गिव यू एग्जांपल्स. ओके, predeterminers come before a determiner and are used to give even more information about the noun that comes after it. So predeterminers, they come before a determiner. And why they come before a determiner? Why they are placed before a determiner? Because they give extra information, they give detailed information about the noun. नाउन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है क्या? प्री डिटर्मिनर. इसीलिए प्री डिटर्मिनर का उपयोग डिटर्मिनर से पहले किया जाता है
क्योंकि ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में क्लियर पिक्चर बताता है नाउन के बारे में. इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर अबाउट द नाउन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये प्री डिटर्मिनर का एग्जाम्पल हुआ, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे. ओके, फर्स्ट, शी स्पीक्स टू मी 3 times a week. अगर मैं लिखूं शी स्पीक्स टू मी इन ए वीक, मतलब हफ्ता में एक बार बात करती है वो. कितना बार? हफ्ता में एक बार. अगर मैं लिखता हूं शी स्पीक्स टू मी इन ए वीक, ठीक है, तो एक बार हो जाएगा. लेकिन यहां क्या है? वीक क्या है? नाउन है. इसका पहले क्या लगा है? ए डिटर्मिनर लगा, जो कि आर्टिकल्स के रूप में है. अब देखो 3 times शी स्पीक्स टू मी, कितने बार? एक साथ हम कितने बार बात करती है? 3 बार बात करती है, सिर्फ 3 बार. 3 times, एक बार नहीं 3 बार. सो 3 times क्या हो गया? ये हो गया प्री डिटर्मिनर. तो यहां हमने देखा ये डिटर्मिनर यूज हो गया नाउन से पहले, उससे पहले प्री, बड़ी और क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुझसे हफ्ता में तो बात करती है. मैं बोल दिया शी स्पीक्स टू मी इन ए वीक, एक बार 2 बार करती होगी, 3 बार भी करती होगी, लेकिन कंफर्म नहीं. लेकिन शी स्पीक्स टू मी 3 times ए वीक अगर मैं बोल दूं तो यहां बहुत क्लियर हो गया पिक्चर, एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, नाउन के बारे में. ए वीक, इन ए वीक, हफ्ता में कितने बार बात करती है? 3 बार बात करती है. इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ये प्री डिटर्मिनर दिया है 3 times. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. दे गो आउट 4 times a day. 4 times a day. डे को, डे का पहले क्या आया है? ए आया है. ए इज ए आर्टिकल, दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनर. सो ए इज ए डिटर्मिनर ओवर हियर, डे इज ए नाउन ओवर हियर. ओके, हाउ मेनी टाइम्स दे गो? 4 times. So this is predeterminers. So predeterminer gives extra information about the noun. मतलब वे लोग एक दिन में 4 बार जाते हैं बाहर, 4 बार घूमने जाते हैं एक दिन में. ठीक है, 4 times a day. Now come to the next. 1/3 of the information was wrong. 1/3 of the information was wrong. अगर मैं बोलूं द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, मतलब जो खबर मुझे मिला, जो सूचना मुझे मिला, वो गलत था, है ना? सूचना गलत था. द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग. तो यहां द इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? नाउन है. इंफॉर्मेशन क्या है? नाउन है. और इससे पहले क्या आया है? द आया है. द क्या है? ये डिटर्मिनर है. डिटर्मिनर कौन सा फॉर्म में? आर्टिकल का फॉर्म में है, डेफिनेट आर्टिकल फॉर्म में. तो ये डिटर्मिनर है. तो हमने मालूम है द इंफॉर्मेशन मतलब एक ही इंफॉर्मेशन है. एक इंफॉर्मेशन में से भी 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो सूचना था उसका 1/3. ओके, 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन मतलब 1/3, 1/3, 3 भाग में 1 भाग इंफॉर्मेशन गलत था. ठीक है, 3 भाग में 1 भाग जो इंफॉर्मेशन गलत था. तो यहां और क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रहा है. तो यह क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर. क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ कम टू नेक्स्ट. He now earns double my previous salary. He now earns double my previous salary. यहां देखो बेटा, डबल एक वर्ड है, यहां माई प्रीवियस सैलरी है. ठीक है, सैलरी क्या है? ये नाउन है. ठीक है, सैलरी क्या है? नाउन है. और माई क्या है? ये डिटर्मिनर है. He now earns my previous salary. मैं अगर लिखूं he now earns the previous salary. ओके, अगर लिखूं तो पता चलता है बस प्रीवियस सैलरी जो था वही मालूम है.
लेकिन यहाँ है ही नाउ वाज डबल माई प्रीवियस सैलरी, मेरा जो पुराना सैलरी था, ये माई जो हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया, उसका डबल। तो ये प्री डिटर्मिनर है। कौन सा प्री डिटर्मिनर होगा? कि मल्टीप्लायर होगा। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ प्री डिटर्मिनर्स भी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मल्टीप्लायर हुआ, डबल ट्रिपल, क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल मीन्स 4 टाइम्स, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स। ही नाउ वाज डबल माय प्रीवियस सैलरी। तो ये प्री डिटर्मिनर, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये डबल लग जाने से इंफॉर्मेशन और क्लियर हो जा रहा है ना, और वास्ट हो जा रहा है, और साफ सुथरा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, वॉट अ ब्यूटिफुल हाउस। हाउस क्या है? ये हो गया नाउन। क्लियर? वॉट अ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इससे पहले क्या लगेगा? ये नाउन फ्रेज है, एक्चुअली ये नाउन फ्रेज है। ब्यूटिफुल हाउस नाउन फ्रेज है। यहां प्रीवियस सैलरी, ये भी नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है, कहने का मतलब जब एडजेक्टिव आ गया तो नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, तो ब्यूटीफुल हाउस नाउन फ्रेज है। अगर मैं बोलूं दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, हाँ, दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, मतलब ये सुंदर सा घर है, ये हो गया डिटर्मिनर। क्लियर? क्योंकि नाउन फ्रेज से पहले आया है, ये क्या कहां प्लेस किया गया है? नाउन फ्रेज से पहले प्लेस किया गया है। ठीक है, और उससे पहले क्या गया? व्हाट। यहां सरप्राइजिंग है, अरे कितना सुंदर घर, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस का मतलब कितना सुंदर घर, तो और क्लियर कर रहा है। तो ये व्हाट जो हो गया, ये हो गया प्री डिटर्मिनर। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो गया? तो क्या हमने देखा? प्री डिटर्मिनर गिव्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। नाउ नेक्स्ट वन, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर मैं बोलता हूं एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट बॉय क्या हुआ है? नाउन फ्रेज हो गया। हाँ, इसमें बॉय नाउन है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज हो गया। एन क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। अगर मैं बोलूं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, वह एक इंटेलिजेंट लड़का है। अगर मैं बोलूं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो कुछ तो लगाना पड़ेगा। कितना इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट है। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, दिस बिकम्स प्रीडिटर्मिनर। वो इतना चालाक लड़का है, ओके, बहुत चालाक, मतलब इतना चालाक है, तो हो गया सच। सच क्या हो गया? प्रीडिटर्मिनर। नाउ कम टू नेक्स्ट, इट्स क्वाइट एन इनक्रेडिबल हाउस। डोंट यू थिंक? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स बिल्कुल जो अलग होता है, सुंदर होता है। सुंदर को भी बोलते हैं इनक्रेडिबल, बहुत अलग होता है। इट्स क्वाइट है, अगर मैं बोलूं इट्स एन इनक्रेडिबल हाउस, सेंटेंस कंप्लीट है। इसका मतलब इनक्रेडिबल हाउस क्या हुआ? नाउन हो गया। इनक्रेडिबल मिलके ये क्या बन गया? क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। उससे पहले क्या है? एन आया। एन क्या है? डिटर्मिनर हुआ। ठीक है, तो इट्स एन इनक्रेडिबल हाउस मतलब ये अलग घर है। हाँ? अगर मैं बोलूं क्वाइट, क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, क्वाइट यहां मतलब थोड़ा बहुत, माने उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा है। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा है। तो ये हो गया क्वाइट यूज हुआ, ये हो गया प्रीडिटर्मिनर। तो क्लियर हो गया कि अच्छा घर है। ठीक है, कितना अच्छा है? थोड़ा बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत अच्छा है मतलब मीडियम। क्लियर हो गया ना? ऐसे कोई बोल देता है कि ये अच्छा घर है, कोई घर खरीदना चाहता है, अच्छा घर मतलब अच्छा मान सकते हो, कितना अच्छा है नहीं बताया है। अगर वो बोलता है थोड़ा बहुत अच्छा, तो मालूम हो गया, तुम्हारा लेवल मालूम हो गया घर का। नाउ दे आर रादर अ नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ए नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ए नाउन फ्रेज है। ठीक है, उससे पहले क्या है? ए आया है। ए इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर। ओके, और इसको फिर मॉडिफाई कर रहा है। दे आर रादर, दे आर ए नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं वो एक अच्छे स्टूडेंट्स का समूह है, ग्रुप है।
सही है? कैसा है फिर भी? दे आर रैदर, रैदर का मतलब हो गया फिर भी, वो लोग फिर भी एक अच्छे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, फिर भी, रैदर का मीन्स फिर भी, तो ये हो गया प्री डिटर्मिनर। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑल द पीपल लाइक टू ईट, ऑल द पीपल लाइक टू ईट, इसमें पीपल क्या है? नाउन है, नाउन है पीपल। नाउन से पहले क्या आया? दो आया है, आर्टिकल आया है, आर्टिकल एक डिटर्मिनर है, तो ये डिटर्मिनर आ गया। और अगर मैं खाली बोलूं द पीपल लाइक टू ईट, लोग खाना पसंद करते हैं, कितने लोग हैं मालूम नहीं है। अगर मैं बोलूं ऑल, ऑल द पीपल मीन सारे लोग जो हैं, ऑल द पीपल लाइक टू ईट, हम किसकी बात कर रहे हैं? सारे, सारे लोगों की, तो ऑल क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर हो गया और क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट वन, बोथ द हाउसेस आर ब्यूटीफुल, अगर मैं बोलूं द हाउसेस आर ब्यूटीफुल, सिर्फ बोलता हूं द हाउसेस आर ब्यूटीफुल, मतलब वो जो घर है सुंदर है। हाउसेस आर ब्यूटीफुल, सभी जानते हैं घर सुंदर होते हैं, सुंदर हैं, हैं? घर सुंदर है, ये तो मालूम नहीं पड़ा कि वहां कितने, जितने सारे घर हैं उसमें है कौन सुंदर है। ठीक है, तो द हाउसेस, हाउसेस क्या हो गया? नाउन हो गया, और द क्या हो गया? ये डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल हो गया। और इससे पहले क्या गया? बोथ, बोथ का मतलब दोनों, प्री डिटर्मिनर हो गया। बोथ द हाउस मतलब दोनों घर सुंदर है, बोथ का मतलब दोनों, तो प्री डिटर्मिनर, इसे मालूम हो गया प्री डिटर्मिनर यूज करने से कि नाउन के बारे में जो बता रहा है घर के बारे में, और क्लियर पिक्चर बता रहा है। कितने घर? दोनों घर सुंदर हैं, बाकी घर उतना सुंदर नहीं है, कहने का मतलब यही ना हुआ। तो बता दिया ना, क्लियर पिक्चर दे दिया ना, क्लियर इंफॉर्मेशन दे दिया ना। प्री डिटर्मिनर, प्री डिटर्मिनर सिर्फ डिटर्मिनर नहीं दे पाता है, प्री डिटर्मिनर को साथ देना पड़ा, तब जाकर क्लियर पिक्चर आया उस घर के बारे में, क्लियर इंफॉर्मेशन आया। तो ये पता चल गया कि प्री डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर डिटर्मिनर्स एंड they give a clear picture about the noun, they give a clear information about the noun, they give the detailed information about the noun. Okay, so these are the examples of predeterminants. So my dear students, that's all for the lesson, for the explanation portion of determinants and predeterminants today. Thank you.